वेलकम बैक। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम दिया है। ब्रदर एम्बेसडर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, dear guest, ladies and gentlemen, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the government and the people of Pakistan, I warmly congratulate the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister, as well as the brotherly people of the Kingdom of Saudi Arabia on the joyous occasion of the 94th National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. We pay tribute to the visionary leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz, who has steadfastly guided the kingdom towards progress and prosperity while upholding the sacred responsibilities of the custodian of the two holy mosques. We also highly commend the sagacious and far-sighted vision of His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, whose initiatives have positioned Saudi Arabia as a beacon of modernity, innovation, and economic growth. The Kingdom of Saudi Arabia, with its Vision 2030 and the theme "We Dream, We Achieve," under the dynamic leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, is assuming a global leadership role. The kingdom is making remarkable strides in ease of doing business, surpassing the world's largest economies, embracing modern techniques. It is in fact amongst the countries that are leading in science, technology, innovation, and enterprise. As leader of the Muslim world, Saudi Arabia has consistently championed the cause of justice, equality, and peace. Its efforts to promote interfaith dialogue, understanding, and cooperation through various international forums have been exemplary. Pakistan and Saudi Arabia enjoy a relationship characterized by mutual respect, cooperation, shared values, and enduring friendship that have stood the test of times through all these years. This relation is unique and goes beyond common interstate interaction, as both countries have consistently supported each other. वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आईन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी जानिब अदालत का फैसला है। कानून वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको, जो पार्लियामान की कानून साजी है वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देनी है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फ़ैसला है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। वो पार्टी जो कि फ़रीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, ना वो पार्टी फ्रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है, मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए
तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। माजी में भी बड़े बड़े सख्त इख्तलाफी नोट सामने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के दरीना मुतालबे की आकासी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हमारे 38 मेंबरान का फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस टंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है। आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारत में बेपनाह पोटेंशल मौजूद है जिससे मुस्तफ़िद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ई गवर्नेंस सिस्टम से मुतल्लिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाया जाए ताकि ई अप्रूवल हो। पहले मरहले में तमाम महकमे अपने डिपार्टमेंट के अंदर ई सिस्टम शुरू करें। दूसरे मरहले में महकमों को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक किया जाए। तीसरे मरहले में तमाम महकमे आपस में मुंसलिक किए जाएं। आखिरी मरहले में तमाम सेक्रेटेरिएट CM सेक्रेटेरिएट के साथ मुंसलिक किए जाएं। जबकि वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी IT को मुख्तलिफ तजावीज़ बनाने की हिदायत की है। सिंध असम्बली ने महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मनशियात में मुलव्वस कितना बाअसर क्यों ना हो बच नहीं सकेगा। नए कानून के बाद इंसदाद मनशियात की मज़ीद बाअसर कार्रवाइयाँ होंगी। रोकने के लिए पुलिस, रेंजर्स, नारकोटिक्स फोर्स साथ है। कानून मौजूद है, कानून पर अमल करवाना हम सब की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी जमातों का बिल मंजूर होने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप कौमी विमेन क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है। कप्तान फातिमा सना की क़यादत में विमेन क्रिकेट टीम दुबई पहुंची। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी और कल से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप का अपना इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, जबकि 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का विमेन क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी।